Got it? So it's a kill chain. So आपने kill chains बनाई, and there's a war, shooting war going on with say about 70, 80 aircraft from Indian side, about 50, 60 aircraft from say maybe 40, 50 aircraft from Pakistani side. You're firing at each other. CO can abort the mission. Can you understand? A mission given by the chief, he aborts it because he feels it cannot be done in the way that has been tasked. So normally, हमारे अगर कोई भी air battle होगा, the classical air battle has to start with suppression of enemy air defenses, suppression or destruction. That means enemy की जो air defense है, आप उसको पहले target. You are given a off-road plank. So you are allowed to कि भाई मैं आपको withdraw होने दूंगा बिना मानहानि के. And also one more concept that has been on for some time is something called National Comprehensive Power NCP. इस तरह की चीज, the highest decision making body in our country is the Cabinet Committee on Security. It's called and ब्रह्मोस में अलग अलग मिसाइल के अटैक मोड्स भी हैं. Jai Hind everyone. So today again we have Wing Commander Sathe. Good afternoon, Sathe. Good afternoon. So it's been almost more than a month, almost 1.5 months, and Ops Sindoor khatam ho gaya hai, and I've been trying to contact you, get in touch with you. So finally we got to get into the podcast again. So for our viewers, what is your assessment of Ops Sindoor? How did Indian Air Force perform? Ops Sindoor was a very interesting operation in terms of the very nature of warfare and especially aerial warfare. So it's one of the new modern facets of war that we were able to see, right from the planning, execution, and also how we achieved it. So, from the olden times, you heard of 71 war that India fought with Pakistan, or immediately 48, immediately after independence, they attacked, or in 1965, or more, much more later in Kargil. These all wars were essentially wars of attrition. By attrition, I mean सेनाएं लड़ी and उसमें बहुत सारी डेथ्स हुई, लॉस ऑफ इक्विपमेंट हुआ, एंड बिकॉज ऑफ विच इंग्लिश में एट्रिशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कि आप अपने फाइटिंग स्ट्रेंथ खो बैठते हो. दैट मीन्स योर सोल्जर्स, योर इक्विपमेंट वो खो बैठते हो. इस तरह से वॉर हुई. बट ये पहली वॉर हुई इंडिया पाकिस्तान के बीच जिसमें हमने सो कॉल्ड अपनी एक दूसरे की टेरिटरी में क्रॉस ओवर नहीं किया. एटलीस्ट आर पीपल डिडंट गो अक्रॉस. दिस वाज द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट वेयर स्टैंड ऑफ रेंजेस, मतलब फार ऑफ रेंजेस से वेपन्स एक दूसरे पे फायर हुए. तीसरा, आर्मी का यूसेज वाज ओनली टुवर्ड्स द आर्मी एएडी दैट वाज यूज्ड. नहीं तो ट्रेडिशनली आर्मी हैज बीन द लीड सर्विस in fighting. So all of these are the new things that happened and the speed at which it happened. The whole thing just lasted 3.5 days, 4 days. So I think it was a new dimension of warfare that we underwent over here. Yeah, and the coordination between the space, like the ISRO and all these Yeah. other So, institutions. so we have been speaking for some time and we have been training on this for some time as the armed forces of India to fight as a wholesome entity and not fight a army ka war alag and air force ka war alag or navy ka war alag. And also one more concept that has been on for some time is something called National Comprehensive Power (NCP). That means you use the sum total अपने पूरी देश की जो strength है, whether it's ISRO, it's not only the soldiers on the ground who are going. Everyone is fighting and assisting in a way that they can assist. And whether ISRO providing satellite imagery or also telling about their movements, locations. So it was that. Then there was other elements like businessmen, the businesses which in India provided our own drones. Drones and Yeah, our own ammunition in real time. And they innovated and they adapted. पहले क्या होता था, हमारे पास जो weapons थे mostly imported थे. Imported weapons में manufacturer doesn't allow you to change the weapon much. Here it was our own weapon. So when we learned some lessons, we changed or tweaked the weapon depending on our requirement, which is so essential to catch the enemy off guard. So this was again something which was new. Yeah, absolutely. So like this Ops Sindoor, how does the pilot prepare or how does the workflow happen for these kind of an operation? Yeah. Yeah, interesting question because a lot of your viewers and even people in the lower rung of the armed forces might not be aware of actually how things work. And Uh, the
thing, whenever a nation uses its armed forces, it is a policy हाँ, decision at the highest level. So a conflict can happen in yeah, two forms. A small conflict could be a skirmish, जैसे border skirmish हो गई, border में कुछ soldiers हाँ, की हाँ, आनाकानी हो गई, तो then that is guided by SOP, standard operating procedures, which allow the commanders who are there certain amount of a certain level of freedom to take action depending on rules of engagement, as we call it RZOE, okay, or what rules of engagement are given. But a conflict like this, what happened is slightly different. See, so what हाँ, happens is that the armed forces and the nation as such has certain war plans. That means you have already war gamed some scenarios कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं, एक टेररिस्ट अटैक हो सकता है, फुल स्केल वॉर हो सकती है, चाइना पाकिस्तान मिल के कर सकते हैं अटैक, से you can have a pirate attack in the high seas on a ship. So these are yeah, certain scenarios which are already war gamed, and war game करने का मतलब आपने forces कैसे allot करने वाले हैं, आपने एक सोच रखा है, आपने एक plan बना रखा है. हाँ, Like a family makes a हाँ, plan, when we go on a visit, we make a plan what all we are going to yeah, do, a rough estimate. But yeah, yeah, now to explain to your viewers how the things happen in such a scenario, because war हाँ, plans and games are generic, they cannot be very हाँ, specific. So जब इस तरह की yeah, चीज, the highest decision making body in our country is the Cabinet हाँ, Committee on Security. It's called CCS. okay, So the हाँ, हाँ, CCS is headed by the Prime Minister, and it has got some okay, other ministers such as Finance Minister, the Ministry of External Affairs, the Defense Minister, and all these people, the Home Affairs Ministry. So these are all what ministries which about are. NSA? So NSA is the secretary to this CCS. So he is like an Okay, okay, advisor. He coordinates everything, and this is how the things work. The three service chiefs, and the chiefs, yeah, 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 the three they are services not are there. there. They're only on invitation. Whenever the Okay, CCS okay, wants their audience, they can be there. So ये जो CCS होती है, okay, ये बैठती है, and obviously they decide that इस security के लिए हमें क्या जवाब देना है. Yeah, are you? Yeah, it could be it could be a financial. financial, yeah, Yeah, or whatever we have done this time. Indus Water Treaty is a prime example. We decided to stop waters in the Indus River, ताकि नीचे जो riparian state downstream state है, which is Pakistan, which is heavily reliant on water for the irrigation. So we have to take action not only in the military domain, but in all domains. So to tell you okay, very smallly, we have to use the comprehensive national power, which I spoke about, when I discussed with you some time back. सारी yeah, yeah, सारी इंडिया की जितनी पावर है, कंट्री की जितनी पावर है, वेदर फाइनेंशियल डोमेन में, और इट कुड बी इवन आर डायस्पोरा, दैट मीन्स आर इंडियंस विच स्टे अब्रॉड, इवन दे कैन इन्फ्लुएंस थिंग्स. So all power is yeah. used. Military power is one of So, it. So even the Indian diaspora abroad is also a part of the power. So this is a sum total solution which CCS decides, and before we come out on solution, they say what is the problem. उस problem का solution जो भी है, तो it they come out with a CCS directive. In short, that means they come to a decision saying कि हमें ये काम करना है. For example, I do not know what is the CCS directive on Op Sindoor, because obviously it's हाँ, top secret, and it will हाँ, be only be in the files. Obviously, it will not be shown to हाँ, me or anybody else. But let's hypothetically say कि Op Sindoor की CCS directive was to teach Pakistan a lesson, and their military establishments and those backing the terrorists a lesson that they will be hit hard in the country. So use all measures to shape public opinion against them, hit them hard so as to not allow them to function effectively, and as they say, a punitive deterrence measure where you punish them with deterrence कि अगली बार अगर करोगे तो इससे ज्यादा आपको हानि पहुंचाई जाएगी, आपको दर्द पहुंचाए. सो इफ दिस इज द एम एंड दिस इज द डायरेक्टिव, इस डायरेक्टिव से अलग अलग मिनिस्ट्रीज को अलग अलग काम बांटे जाएंगे. सो एमईए को हाँ, कुछ हाँ, काम हाँ. होगा ऐसा. सो एनीवे, लेट्स फोकस ऑन व्हाट द क्वेश्चन यू आस्क्ड, दैट व्हाट विल बी द काम गिवन टू द आर्म फोर्सेस ओवर हियर. सो आर्म फोर्सेस So, bas- विल. so हाँ, basic बताइए. basically like just 2 minutes. So like you are saying, once the final aim or final end point is decided, या एंड देर आफ्टर जैसे अलग अलग मिनिस्ट्री को काम बांटी जाएगी, तो मतलब फाइनेंशियल्स भी सिक्योर किए जाएंगे कि इतने फाइनेंसेस होंगे, एवरीथिंग हाउ एवरीथिंग. लॉन्ग, या Because बिकॉज all the लॉट ऑफ ministries पीपल आर need to डिस, speak to each other. They're interdependent. If the armed या, forces need some time to prepare, like they took time. They took about 3 weeks, 2-3 weeks to prepare themselves. उस प्रिपरेशन में आपने एमिनेशन खरीदी होगी, आपको उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर से पैसे चाहिए, है ना, आपको
से एमओडी का आपको पुश चाहिए टू फास्ट ट्रैक सम इंपोर्ट्स ऑफ वेपन्स, स्पेयर्स, स्पेयर्स के शॉर्टेजेस। तो ये सब चीजें आप एक अकेले में कोई काम नहीं करता, आइसोलेशन में कोई काम नहीं करता, इट्स अ सम टोटल एफर्ट। सो बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर, हाँ, या लॉट ऑफ बिकॉज लॉट पीपल। ऑफ पीपल आर डिसअपॉइंटेड कि हाँ, हमने पीओके क्यों नहीं लिया. so coming to that point, see again, like I said, the decision is taken at the beginning. It's well, sorry to use the word, but it's not like a मुशायरा competition where आप अर्ज कीजिए, आपने अर्ज किया और एक बात से दूसरी बात होती गई. It's not a free for all thing. Any mature government and armed forces are given clear cut directions on what they need to achieve, and based on the direction, the plan and action is done, whether militarily or otherwise. है ना? सो Okay. अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस तरह की प्रिपरेशन होगी जो आईआईटी की जरूरत है। और अगर आपको सिर्फ अपने 12th का एग्जाम देना है, 10th का एग्जाम देना है, तो लोकल ट्यूशन लेके काम चल जाएगा। सो आपकी जो बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है वही अलग होता। अगर हमें पीओ के लेना होता तो हम अपनी आर्मी की स्ट्राइक कोर मूव करते, हम लॉट ऑफ अदर थिंग्स एक्शंस वी वुड हैव टेकन टू गो फॉर देम, Yeah. वी वुड नॉट हैव गॉन फॉर द Yeah. वे वी वेंट। Yeah, and सो like इंटरनेशनल नैरेटिव भी बिल्ड करना होगा बिल्कुल उसके लिए, इंटरनेशनल बिकॉज नैरेटिव, इट्स अ होल टास्क। सो आपको जब एंड कोई चीज अचीव करनी है तो प्रिपरेशन उस तरह की चाहिए आपको। एंड पीओके इज नॉट ए मिलिट्री aim or military objective basically. सी अगेन, पीओके, अगर लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो, अगर पीओके लेना भी है Yeah. एंड आर्म फोर्सेस की उसमें इंटरवेंशन की जरूरत है, आर्म स्ट्रगल की, आर्म, तो उनको स्पेसिफिक चीजें बताई जाएंगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको पीओके लेना है इन दी एंड। तो आप स्टार्टिंग उस तरह से करोगे। ओके, अभी आप कभी भी अपने कार्ड्स, छोटा गेम जैसे ताश खेलते हैं, आपका फाइनल एम होता है कि मैं करना क्या चाहता हूँ, उस हिसाब से Of आप course. स्टार्ट करते हो। सो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा था इन द एक्शन कि पीओ के लेना कहीं एम था। सो जो एम सेट आउट किया वो आर्म फोर्सेस ने अचीव किया, बिकॉज दैट एम वाज गिवन टू द आर्म फोर्सेस इन द सेंस दी थ्री Like, सर्विसेज। yeah. थ्री सर्विसेज में से इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एयरफोर्स, व्हाट टास्क एयरफोर्स कुड डू, what Navy could do, and what Army could do. And the options chosen were such that Air Force was essentially used in this, because Yeah. all the aims that were laid out to the armed forces, they could be achieved with the use of the Air Force mainly. So next war could be different. It is not that this is something like a set piece कि हर बार यही होने वाला है. If the aim is, if say the aim is to do take over POK, for example, that you mentioned, then you will require army and lot of other things to happen. Other things. Yeah, and Yeah. this is a retaliation of, say, the Pahalgam incident, Yeah. right? And the task might be that means we should hit the only the terrorist base, or task is basically Yeah, not because might be. because it's a public perception, and again, this decision is of the government. It is not of the armed Yeah, forces. The yeah, government yeah, decides because finally जवाब उनको देना है. It's a democracy. People have elected them as a representative. They represent the choice of the people, the will of the people, and yeah, finally they are answerable to the public. Armed forces are not answerable to the public. In fact, armed forces are not even answerable to the government, and they protect the constitution. Constitution says this is the elected government, so they have to follow the orders which come from there. So it is not a choice of Air Force deciding or Army deciding कि हम POK ले लेते हैं. There is nothing ले लेते हैं. There is a order given and you execute that order. That's how and it जो works. हमने, या सो हमने जो हमारे जो पहले दिन जो 9 टारगेट लिए थे, so our aim has already been established on the first day itself there. Okay, so let me speak something about moral ascendancy in war. Okay, very big word, Okay. moral ascendancy. But अगर Okay. मैं इसको हिंदी में आपको समझाऊं सिंपल भाषा में, तो आप कोई भी काम जब करते हैं तब उसमें एक मॉरल डायमेंशन होता है कि क्या आप सही हैं, क्या आप सही काम कर रहे हैं। एक घर पे जब फादर अपने बेटे को डांटते हैं तो कितना भी डांटे, बेटे को पता होता है वो गलत बात नहीं कर रहे, वो उसके फायदे की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं? सो ये जो मॉरल असेंडेंसी, असेंडेंसी मतलब ऊपर रहना, आपका आपका जो आपकी जो व्हाट यू कॉल, कैसे मैं हिंदी में वर्ड बोलूं, तो आपका जो वो है इंटेंट है, आपका जो जो अचीव धर्म है. एम है, आपका जो एम है वो नोबल है। आप अपने फायदे की बात नहीं करें। सो जितने भी वॉर्स हुए हैं वर्ल्ड में, अगर आप उनको एनालाइज करें, जहां भी जो कंट्री अटैक पे है या डिफेंस पे है, जिसके पास वो है कि सच्चाई का वो है, सच्चाई और धर्म का साथ है, वो हमेशा पावरफुल रही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मुजाहिदीन,
जो तालिबान और अफगानी लोग जो लड़े, अफगान के लोग लड़े अगेंस्ट सोवियट्स, जब सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हुआ, वो शेरों की तरह लड़े। क्यों? क्योंकि उनकी कंट्री को इन्वेड किया जा रहा था, तो वो एक अधर्म हो रहा था उनकी कंट्री पे। वो अपनी तरफ से धर्म और सच्चाई के लिए लड़े, तो बहुत अच्छा लड़े। बट सेम मुजाहिदीन जब कारगिल में लड़े नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के साथ, उन्होंने, एयरफोर्स ने जब मुंटो ढालो और कई ऐसे लॉजिस्टिक्स नोड्स पे जब अटैक करना शुरू किया, वो भाग गए वहां से पोस्ट छोड़ के। तो उससे हमें क्या समझ आता है? ऐसा नहीं कि मुजाहिदीन कायर थे, मुजाहिदीन कायर नहीं थे। उनके पास वो, हर इंसान को पता होता है वो लड़ क्यों रहा है। सो हमें मॉरल असेंडेंसी चाहिए होती है एनी कंट्री को टू विन, कि हम सही काम कर रहे हैं, हम गलत काम नहीं कर रहे। चाहे कोई भी सेना हो, चाहे चीन की सेना हो, चीन की सेना जब इंडिया में अटैक किया और उन्होंने फाइनली विड्रॉ किया, हमने काफी मुंह की खाई उस समय 62 में, बट विड्रॉ किया। एवरी सोल्जर ऑफ देयर्स न्यू व्हाट दे आर डूइंग, दे आर स्टेपिंग इनटू इंडिया, इंडिया हैज नॉट स्टेप्ड इनटू चाइना। So, moral dimension of a conflict is very important, and which is what was addressed in this conflict. The way you told, आपने ऐसे बताया कि हमने सिर्फ टेररिस्ट, हमको आपके सिटीजन से जंग नहीं है, हमारी हमारी लड़ाई आपके सिटीजन से नहीं है, उन्होंने कोई हमारे साथ जुल्म नहीं किया, बट आपके मिलिट्री ने और आपके टेररिस्ट ने किया है। टेररिस्ट ने डायरेक्टली किया, मिलिट्री उनको सपोर्ट कर रही है। सो ये पार्ट। फोन आया क्या तेरा? फोन आया था क्या दोबारा से? हाँ, एक और बार लास्ट। हाँ, हाँ, या लास्ट लास्ट क्या बताया था, मैंने भूल गया। एनीवे, हाँ, मैंने कहा कि सो मॉरल सो मॉरल हाँ बता। सो एक और चीज़ आई वांट टू से, was the Indian Air Force's hands tied behind on the first day of attack? Yeah, I won't say कि tied तुम्हें behind is a tied behind is a wrong word to use. I will say like that there are certain things called rules of engagement. हाँ Yeah. हाँ हाँ, So the rules of engagement have to be made very clear. The rules of engagement given was that please do not start an all-out conflict. नहीं तो नॉर्मली हमारे अगर कोई भी एयर बैटल होगा, द क्लासिकल एयर बैटल हैज टू स्टार्ट विथ सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, सप्रेशन और डिस्ट्रक्शन। दैट मीन्स एनिमी हाँ की जो एयर डिफेंस है, आप उसको पहले टारगेट करिए। वहां जब हाँ, कुछ आपके पास सुराख, छेद, जगह बन जाए, वहां से आप अपनी स्ट्राइक फोर्स भेजिए, जिससे कि आप आगे हमला कर सकें। बट ऐसा करने से बिल्कुल। हमारा हमला पाकिस्तान के खिलाफ हो जाता, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हो जाता, जो कि हमारा एम नहीं था। हमारा एम वॉज टू हिट टेररिस्ट विद मॉरल डायमेंशन, वी वांटेड टू कीप अ हाई मॉरल ग्राउंड। सो हम नहीं दिया। अब इस पे आप वाद विवाद कर सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं कि क्या ऐसा करना सबसे अच्छा है या नहीं, बट this is where a country's image is involved, which the government and the people have to decide. हमने कभी भी किसी पे जंग छेड़ी नहीं है, सो हमने यही काम इस बार भी किया। तो ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एयरफोर्स को दिए गए होंगे, विच इज वाई दे डिड नॉट अटैक द एयर डिफेंस डायरेक्टली। इट इज ओनली इन द लेटर And पार्ट ऑफ द once ऑपरेशन दे डिड। या when the gloves were out, basically, maybe on the third day, gloves went off because where you we attacked the terrorists and we sent out a narrative that जो काम आप नहीं कर पा रहे वो हम कर देते हैं, बिकॉज पाकिस्तान केप्ट ऑन डिनाइंग कि हमारे पास तो कोई टेररिस्ट है ही नहीं और हम उनको पकड़ नहीं पाते, तो हमने कर दिया। बट जब उनकी मिलिट्री सपोर्ट में आई, तो वी हैड टू हिट पीपल हु आर सपोर्टिंग द मिलिटेंट्स। एब्सोल्युटली। या दूसरा चीज़ ये है कि हाउ, सो व्हाट हैपेंस इन ए स्क्वाड्रन, हाउ डज द लास्ट पायलट who goes and strike, how does he prepare for this kind of a mission or या operation? सो ये प्रिपरेशन 365 डेज अ ईयर 24/7 चल रही होती है, जिसे हम प्रैक्टिस सिनेरियोज में करते हैं। सो जब ये ऐसा बिगुल बजता है, जिसको हम कहते हैं कि वॉर क्राई आती है, वी हैव, दैट इज द डे यू हैव टू फाइनली परफॉर्म व्हाट यू प्रिपेयर्ड फॉर सो मेनी इयर्स। Okay, so now when I told you the CCS directive came, I'll just put it short in a way that your viewers can easily understand. But if there are any questions, I can always take them on later. So basically, जब CCS ने ये डायरेक्टिव दिया, ये डायरेक्टिव आर्म फोर्सेस के पास आया। इसमें जो आर्म फोर्सेस वाला पार्ट था, आर्म फोर्सेस वाले पार्ट में आर्म फोर्सेस ने चूज किया कि एयरफोर्स इज बेस्ट सुटेड टू इन्फ्लिक्ट दिस अटैक्स ऑन टेररिस्ट कैंप्स। एयरफोर्स का देने के बाद एयरफोर्स विल हैंड इट टू एयर हेडक्वार्टर्स में आएगा। एयर हेडक्वार्टर्स का स्टाफ विल हैंड इट ओवर टू कमांड एज अ स्पेसिफिक टास्क, कि भाई वेस्टर्न एयर कमांड से सेंट्रल एयर कमांड के पास, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, उसके हिसाब से उनको टास्क दिया जाएगा और उनके जो कमांडर इन चीफ हैं, उनको उस टास्क को एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। जब उनको ये बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है,
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका जो कमांड स्टाफ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके, वो उसके पास जो एसेट्स हैं, उसके क्या एसेट्स हैं कमांड के, फाइटर स्क्वाड्रंस, एयर डिफेंस यूनिट्स जो उसके अंडर है। से फॉर एग्जांपल ग्वालियर में मेरा जिसकी स्क्वाड्रन है, तो लेट्स टॉक ऑफ से बालाकोट। बालाकोट में उन्होंने डिसाइड किया कि वी नीड टू हिट दिस टेररिस्ट कैंप विद सर्टन वेपन्स। ये वेपन्स कौन कैरी करता है? मिराज 2000 करता है। तो हम मिराज 2000 को टास्क करेंगे। तो कमांड्स डिसाइड विद देयर स्टाफ, दे हैव अ प्लानिंग सेल। कमांड इज अ बिग एस्टैब्लिशमेंट विद लॉट ऑफ रिसोर्सेज। तो कुछ रिसोर्सेज कमांड के पास होते हैं, कुछ एयर हेडक्वार्टर के पास होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हाँ सैटेलाइट इमेजरी, इमेज इंटरप्रिटेशन, ये हाँ सब एयर हेडक्वार्टर के पास होते हैं सेंट्रली। ये हाँ टारगेट्स और ये सब अलॉट करेंगे कमांड को। कमांड उस टारगेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी टू फाइटर स्क्वाड्रन। जो फाइटर स्क्वाड्रन में मिलेगा उसको, तो उसको सिर्फ उतना मिलेगा जितना उसको करना है। दैट मीन्स हाँ अगर मैं एक स्क्वाड्रन का सीईओ हूं, मुझे 4 मिराजेस भेजने हैं 2 बार में, 2 वेव्स में, तो मैं 4 मिराजेस विथ स्टैंड बाय रेडी करूंगा बेस्ड ऑन द टास्किंग दैट इज बीन गिवन टू मी। अब उस 4 में कौन पायलट फ्लाई करेंगे ये कमांड नहीं डिसाइड करता, ये सीईओ डिसाइड करेगा कि कौन से पायलट हैं जो उसके हिसाब से उस 4 में जाने चाहिए, बिकॉज दैट इज द टास्क गिवन टू हिम बाय हिज सीएनसी। हाँ ठीक है। सो आप अगर देखा जाए इस पूरे चेन में सिर्फ 4 ही कमांडर हैं। हाँ एक है चीफ, चीफ के नीचे है हाँ सीएनसी, सीएनसी के नीचे है हाँ एओसी जो उस बेस को What हैंडल कर about रहा the है। DG Air Ops? DG Air Ops? दे आर नॉट कमांडर्स, दे आर ऑल स्टाफ, प्लानिंग स्टाफ। Okay, okay. The difference between planning staff and commander is commander can take executive decision, means CO can abort the mission. Can you understand? A हाँ mission given by the chief, he aborts it because हाँ he feels it cannot be done in the way that has been tasked to him. Final. Staff cannot Okay. say about it. Staff can only suggest or plan. हम्म So the lowermost commander हम्म is the CEO. So आपका AOC और उसके नीचे CEO. तो 4 कमांडर है आपके हाँ पास और बाकी सब स्टाफ है who are working. So DG Air Operations, Director General, is air operations को coordinate कर रहा है. The orders have हाँ not been given by him. The orders have been given by the chief. He is working on those orders. ठीक है. Okay. Yeah. So He's while I planning. He's not planning it. he's planning, but हाँ his planning cannot go outside the daira of what is given by the chief. हाँ हाँ You हाँ understand? हाँ So suppose, like I gave you an example, chief tells please target terrorist camps, then he can say I'm going for the airfield. हम्म He has to take a fresh clearance from the chief to do that. He can suggest his Okay. staff. He can suggest, sir, I think we should need to go for this now. हम्म But जब terrorist camp बोले तो terrorist camp. Which terrorist camp he can choose. हम्म You understand? हम्म So हर एक के पास अपना दायरा है. It's हाँ just like a हाँ family. It's just like a family. Father decides the budget and कहाँ जा रहे हैं घूमने. कश्मीर जा रहे हैं हम इस बार घूमने, या फिर हम हिमाचल जा रहे हैं बेस्ड ऑन द बजट. यू कैनॉट चेंज हाँ दैट. कश्मीर में कहा छोटी मोटी हम्म चीज, दैट प्लानिंग कैन बी गिवन टू हिज सन, वाइफ, एंड दे विल डिसाइड कि हाँ ये कर रहे हैं. बट कश्मीर की जगह कन्याकुमारी जाना है तो दे हैव टू सजेस्ट टू द फादर अगेन, हु इज द हेड ऑफ द फैमिली, बाबा लेट्स कैंसिल कश्मीर एंड लेट्स टेक कन्याकुमारी, व्हिच द फादर हैज टू एग्री. हम्म He has to say, okay, I agree to your proposal. So that is the role of staff हम्म and commanders. And now coming to Commanders the are the pilot, yeah, now coming to the pilot. Pilot तो last का executor है. But he is the most important हाँ guy because all this planning and decision will go to a naught. That means zero if the pilot doesn't deliver. Which is why the pilot is incessantly trained 365 days 24/7 कि जब task आएगा तो आप professionally करेंगे, नहीं तो सारी planning will go into thing. So these targets are already planned in the squadron And also a good point beforehand. I'd like to mention is all these commanders and staff have been pilots before. None of them हाँ are non-pilot. हाँ So they have been So in they the have done seats. it. Been there. Yeah, been there, done Been there, that. And done so that. ऐसा कोई काम बोलेंगे नहीं जो हो नहीं सकता. हो सकता है भी बोलेंगे because हम्म that is why they are sitting there. Another thing is that a lot of people are into movies. So they वो लोग देखते हैं जो क्लासिकल डॉग फाइट होता है, एक एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट को पीछे जाता है एंड ऑल दैट, वेदर इट्स टॉप गन और हिंदी मूवीज जो भी है, एंड so it is shown like that, and that is why when you see that the aircraft is down, so one aircraft is chasing another, and we feel that we have lost another aircraft, right? That means their aircraft is more powerful or our aircraft is more powerful, so one could kill another aircraft. That is what the normal perception is at a very
everybody's level who don't understand the modern air operations. But जो आजकल के दिन का जो air operations है, which is a totally highly sophisticated. Basically, there are so many aircrafts which were airborne in these operations, you know, including fighters and AWACS and airborne early warnings. इसके अलावा there is something which has been controlled by the IACCS, which is controlling everything. Then you've got satellites and all. Can you explain what does a modern aerial warfare look like? So ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है to answer in a very small nutshell, but I'll attempt. I'll Yeah, definitely attempt. yeah, So like you brought out yourself, it is not a one-on-one fight. It is not yeah, one Rafale fighting one F-16. It's a massive yeah. force, as we call it. J10, It's called LFE. J10, Jet. हाँ, No, लार्ज I'm फोर्स saying, है। हाँ, मतलब J10s हैं, F-16s हैं, JF-17s हैं। ठीक है, there's so many of them. So no, the essentially, narrative is of J10, yeah, gunning down but a Rafale. No, yeah, that is it's why I not a say, gunning down. See, one has to understand it's a mass and mix. That means it is uh, not one fighter against another. When you fight one fighter against another with everything stacked evenly, then आप जो uh, conclusion निकालते हैं वो सही है। uh, So मैं आपको एक uh, एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक कमांडो है जो बड़ी हाईली ट्रेन्ड है, जिसने 10 uh, साल ट्रेनिंग की है with all the special forces of the world, and he's come out, and now he enters a building where there are 5 militants holed up and he gets shot. Do you think his mm, training was anywhere wrong? At mm, times there is something called luck. At sometimes there is something called an initiative or a bad mm. decision. So these are all tactical decisions. There are bound to be losses when there is a fight. Period. That is number one. And दूसरा चीज़ जो कमांडो एग्जाम आप उनको बोल के रखो कि आप उनके सिर्फ टेररिस्ट कहाँ भी मार सकता है, लेकिन आप उनके सिर्फ टांग पे ही मार सकते हो, उसको मार नहीं, नहीं वो तो सकता वो, किसी. वो तो अगेन रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हो गए जो मैंने पहले बोला था आर्जुन, या बट मैं सिंपल बोल रहा हूँ। whenever there is a shooting war, that means both are going to shoot at each other, there are going to be losses. ईच अदर So there is लॉसेस. no doubt that there have been losses on Pakistani side as well. अब आप बोलेंगे या कि नहीं, बट that is perception battle. So that is a separate question altogether. So to first answer your question, how this battle takes place, it's a networked warfare that we are fighting. So this is a networked battle. So by a networked battle, I mean is in the olden days, good old days, the detection was primarily by eyes of a person. आंखों से देख के पहचानते थे हम। जब वर्ल्ड वॉर टू आया तो हमारे पास रेडार आया, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडार का फुल फॉर्म RADAR, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। दैट मीन्स आप रेडियो रेंजिंग. वेव्स भेजते हो और वो टकरा के वापस आती है, आपको पता लगता है कोई ऑब्जेक्ट है, मेटालिक ऑब्जेक्ट लेके ना एयरक्राफ्ट। सो आपके पास रेडार्स आए जो आपको वार्न करने लगे, वो वार्न करके फिर से आप आंखों से ही देखते थे, पिकअप आंखों से ही करते थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी। वर्ल्ड वॉर 70s 80s में पावरफुल ऑनबोर्ड रेडार आने शुरू हुए कि जहाज पे अपना खुद का रेडार है, विच इज कॉल्ड एयरबोर्न इंटरसेप्ट रेडार, AI रेडार। सो वो रेडार खुद देख सकता है। आज स्थिति ऐसी आ गई है उसके 40-50 साल बाद कि सब सबको देख सकते हैं, सबके पास पावरफुल रेडार्स हैं और नेटवर्क्स हैं, तो आपको रियल टाइम में पता लगता है कौन कहाँ है। ओके, हमारे रेडार्स भी नेटवर्क है। सो मुझे आपके रेडार की पिक्चर भी दिखती है, और सबको एवैक्स जो आपने बोला, एयरबोर्न वार्निंग, दैट मींस एक जहाज एयर में जिसके ऊपर एक बड़ा सी इडली बनी हुई है, इसका बहुत बड़ा रेडार है। वो रेडार सारे रेडारों से बहुत पावरफुल है, बिकॉज वो केवल उसका काम ही वो है, उसके पास कोई वेपन्स नहीं है। तो दूसरा रडार तो ग्राउंड में था, सो हाँ, इट हैज उसको गॉट आपने, लिमिटेड एक्सेस और लिमिटेड हाँ, ऊपर अब चला आप दिया आपने. ऊपर चढ़ा दिया आपने उसको, और आपने उसको नेटवर्क भी दे दिया, तो सारे जहाज, तो अब क्या हो गया, जहाज का पायलट और जहाज एक छोटी सी एंटिटी हो गई, बड़ी एंटिटी को ही वो एवैक्स हो गया, और या और IACC एवेक्स नेटवर्क। और हाँ, एवैक्स और एवेक्स और AEWX जो है, जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग both have got एयरक्राफ्ट है उनका. both have similar things except that AWC is much smaller, उसकी रेंजेस कम होती हैं, and the command function is lacking, it is lesser, but they are ओके. loosely the same. जो एवैक्स है आपका वो बहुत बड़ा है, हमारे जैसे IL-78 प्लेटफॉर्म पे है, जो कि मैसिव जहाज है, 70 टन का जहाज है, 70 टन से भी ज्यादा का जहाज है, उस पे माउंटेड है। AWC एक छोटा जहाज है जो उनका साब कंपनी का है, एराई करके, ERIYE, एराई, साब एराई करके है, नहीं नहीं, जो वी हैव पाकिस्तान गॉट के ए पास है। वी हैव गॉट ए. हाँ, और लेकिन वी हमारे हैव गॉट पास ए नेत्रा है, इंडिजिनस ना, हमारे पास नेत्रा है। नेत्रा, हाँ, जो सो DRDO ने बनाया है ना. करेक्ट। सो अब ये एंटिटीज हो गई कि भाई एवैक्स, हाँ, एसेंस क्या है कि ये सब आपको एंड विजिबिलिटी दे रहे हैं ऑफ द एंटायर बैटलफील्ड।
And तो Netra performed really well. यही This, परफॉर्म, तो 100 जहाज हैं yeah, आपके एयर में जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, रेडार उनसे बात कर रहे हैं, और आप एक किल चेन फॉर्म कर रहे हो। किल चेन मतलब रेडार ने देखा आपके अंडर, uh, एवैक्स के अंडर कुछ जहाज है, आपने उनको अलॉट किए टारगेट्स, और टारगेट्स ने उस पर फायर किया। Got it? So it's a kill uh, chain. So आपने kill chains uh, बनाई, and there's a war, shooting war going on with say about 70, 80 aircraft from Indian side, about 50, 60 aircraft from, say maybe 40, 50 aircraft from Pakistani side. You're firing at uh. each other. When this is firing is taking place, somebody And has to you're take not risks. even Somebody has to take and you're risks. not even looking Understand? at each other. Ah, there's no looking happening. It is all beyond visual range. We are talking of ranges of 80, 100, 120 kilometers. There's no looking happening. You're looking at your screen. Yeah, yeah. Now, when such a shooting war is taking place, there and 70, 80 aircraft shooting 30, 40 aircraft, and you are the attacker. That Uh, means India is the attacker in this case because we want to push our aircraft which are going to launch the strike closer to the targets from where they can fire. So but we are not attacking the aircrafts we're not hitting aircraft. See, we'll have to attack aircraft also. At because the end of the day, whoever resists us, we have to attack them. बट आपका एसेंस क्या, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि मेरे जो स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है विच आर कैरिंग ब्राह्मोस, विच आर कैरिंग वेरियस हैमर, स्कैल्प, ये जो वेपन्स हमने यूज किए टू फायर एट एनिमी टारगेट, वो अपने टारगेट रेंजेस पे पहुंचे, लॉन्च रेंजेस पे पहुंचे। और एनिमी क्या चाहता है? हाँ एनिमी चाहता है कि वो लॉन्च रेंजेस पे ना पहुंचे। ना पहुंचे ओके तो आपको या तो एक तरीका ये है कि आप कीप बीइंग केयरफुल, दैट मीन्स यू डोंट ट्राई टू पुश, you wait for air superiority to come अंडरस्टूड through. But if you want to really push, then you will have to take aggressive measures, take your chances to come closer. ओके And the enemy is going ओके to deny, he's going to fire at you. So if I have to relate this to a scenario which on ground and आर्मी के, आपके पास कुछ टेररिस्ट अंदर छुपे हुए हैं, आपको रूम इंटरवेंशन करना है। दैट मीन्स आपको अपने स्पेशल फोर्सेस या कमांडोज भेज के रूम के अंदर घुसना है। आपको घुसना कुछ है रिस्क तो लेनी बिल्कुल पड़ेगी। यू कैन, इफ यू डोंट टेक बिल्कुल रिस्क, सपोज यू सिट आउटसाइड, देयर विल बी नो फैटेलिटीज, एक भी वो नहीं होगा, सब सेफ, मिलिटेंट्स भी सेफ, आप भी सेफ। या फिर आपके पास ऑप्शन है कि पूरी बिल्डिंग ही उड़ा दो, बट सपोज बिल्डिंग उड़ाने का ऑप्शन अब तक वो तो कर नहीं सकते आप रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नॉट अलाउ यू। सो अब नॉट आपको अलाउड अंदर घुसना है, तो आप क्या करोगे? आप वेरियस मेजर्स लोगे, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनोगे, कवरिंग फायर दोगे, बट देर विल बी रिस्क, एंड रिस्क विल बी टू द पर्सन हु इज एंटरिंग द रूम। सो दिस इज द रिस्क दैट इंडियन फाइटर्स हैड टू टेक against them because we were not sure of, we were sure of that they are there, but you have to push and come closer. आप दूर दूर रहोगे तो आप कोई फायर ही नहीं कर पाओगे। You have to come closer into, so they, whenever such an operation takes place where they are ready, you have to understand Balakot took place at a time when they were not ready. This took place at a time when they already knew that हम after 26 पहलगाम के बाद हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हमने बोल दिया था हम उनको छोड़ेंगे नहीं, तो वो तो रेडी थे। So at such a time to push and successfully attack, you are going to have some losses, but या look at the professionalism of the operation where the losses were very minimum, and whatever losses we had on the first day or second day, whatever, we learned from it, and then there were no losses. In fact, we inflicted a lot of losses on their side. One of their AEWC aircraft has been shot down in the air by our air defense system. Okay, their which they never accepted they never accept anything. In Kargil, they didn't accept the bodies of their own soldiers who are wearing the uniform, who are carrying I-cards. If you go to Dras at Kargil War Memorial, you will find hundreds of evidences of I-cards, bottles, ammunition, cases. सब पे Chinese और Pakistani वो है insignia, वो accept नहीं करते, तो forget the accepting part. They are never going to accept अभी anything. recently they are not even accepting their own citizens Yeah, so which they are in a state of denial. One has to understand they are a very small entity. For them to win, how do they win? The win is called what we call as the notion of victory. That means you decide मैं जीत गया। आप छोटा भाई है, आपका 5 साल का भाई है और बड़ा भाई 15 साल का है, तो वो 5 साल वाला भाई तुम्हें लगता है कि 15 साल वाले को कुश्ती में हरा देगा क्या? बट उसने अगर 15 साल वाले बंदे को 2 लाफे लगा दिए और निकल गया, ही इज वन, जीत गया वो। इतना छोटा होते हुए भी 2 लाफे लगा के चला गया, और 15 वाला हार गया, जबकि कुछ नहीं हुआ, लाफे लगे उससे कुछ भी नहीं हुआ। So समझ this गया is what is called as notion of victory in very very simplistic term. So जो smaller nation होता है like पाकिस्तान, उसको अपने सिटीजन्स को बताना है कि हम जीत गए, क्योंकि उनका जो नैरेटिव वो वही है कि एक पाकिस्तानी सोल्जर इज वर्थ 10 इंडियन सोल्जर्स।
ये हाँ उन्होंने हाँ अपने आप के लिए बना रखा है। तो उसके लिए उनको जरूरी है कि वो उनके 10 एयरफील्ड्स पे अटैक हुआ, 10 या 11, एंड डैमेजेस हुए, जिसमें उन्होंने ग्राउंड पे भी एक एवैक्स AWC एयरक्राफ्ट खोया या है, प्लस बोलारी। उन्होंने कोई पाक जहाज खोया, उनके रनवे डैमेज हुए, बट दे कीप सेइंग हमें कुछ लगी नहीं। सो कहते हैं ना कि हाँ सोते हुए इंसान को उठा सकते हो, जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको नहीं उठा सकते आप, कभी भी नहीं उठा सकते। वो डिनाइल में बिल्कुल। ही रहेंगे हमेशा। ना उनके पास मिलिटेंट्स हैं, ना उनके पास टेररिस्ट कैंप्स हैं, और ना उनको कभी अफेक्ट हुआ है। बट देन व्हाई डिड दे आस्क फॉर स्टॉपिंग द वार? व्हाई डिड द DGMO कॉल अप आवर DGMO? Which also is So मतलब they thank Trump. these are called, you are given a off-road plank. So you are allowed to कि भाई मैं आपको विड्रॉ होने दूंगा बिना मानहानि के, है ना, जो हम Yeah, निगोशिएशंस yeah, में I भी understand. कहते हैं ना कि आप ऐसे बोल दीजिए कि मुझे मैंने आपको मना किया, जबकि सच्चाई हाँ, उनको पता होती है जो वहां इन्वॉल्व है। बिल्कुल। या सो लाइक व्हाट इज बीवीआर, मतलब बीवीआर क्या करता है, ब्रह्मोस क्या करता है? सो BVR इज अ जेनरिक टर्म। BVR स्टैंड्स फॉर बियॉन्ड हाँ विजुअल रेंज। सो अभी हाँ हमने आपको बताया, वैसे वेपन्स पहले फायर होते थे विद इन विजुअल रेंज, आंखों से देख के। टुडे वी आर फायरिंग हाँ वेपन्स, ईदर दे आर हीट सीकिंग, दैट मींस जहाज की गर्मी को सेंस करके जाते हैं, या दे आर हाँ रडार गाइडेड, दैट मींस मेरा रडार उस टारगेट एयरक्राफ्ट पे वेव्स मारता है, वो वेव्स टकरा के जो वापस आती है, तो वो मिसाइल में एक रिसीवर है, वो रिसीवर उस जहां पे टकरा के आ रही है वहां जाता है। पर उसके लिए आपको रडार को कंटिन्यूस उसको पेंट करते रहना पड़ेगा। बाय पेंट आई मीन कीप हिटिंग योर वेव्स ओवर देयर। और तीसरी तरह की मिसाइल हाँ होती है जो आप मिसाइल मारेंगे, वो उस वेव से टकरा के उसको फॉलो करेगी, और उसके खुद पे भी एक रडार है, देयर इज अ रडार ऑन द मिसाइल हाँ आल्सो। सो जब वो थोड़ा पास चली जाएगी वो एक्टिव हो जाएगी, दैट मींस उसका खुद का रडार उसको पकड़ लेगा। अब वी डोंट हैव टू कीप पेंटिंग दैट टारगेट, वी कैन टर्न अराउंड एंड वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट अदर देन दैट। सो ये तीन ओके। तरह की मिसाइलें हैं मेनली। हीट सीकिंग, हाँ जो कंटिन्यूअसली पेंट करने उसे हम सेमी एक्टिव कहते हैं, सेमी एक्टिव मिसाइल, बिकॉज इट्स नॉट फुली एक्टिव। एंड दूसरी फुली एक्टिव मिसाइल, जिसमें मिसाइल पे खुद का एक रडार है। सो ये सारी BVR हाँ वेपन्स हैं। रही बात ब्राह्मोस की, ब्राह्मोस है एयर टू ग्राउंड वेपन और ग्राउंड टू ग्राउंड वेपन। ब्राह्मोस का जो ओरिजिनल वर्जन था वो सरफेस टू सरफेस था। तो ब्राह्मोस एक हाँ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। व्हेन वी से क्रूज हाँ मिसाइल, there are two types of missile, either it could be a ballistic missile or a cruise missile. Ballistic missile क्रूज follows a मिसाइल। ballistic trajectory, क्रूज जहाज की तरफ फ्लाई करते हुए जाती है ग्राउंड के पास, ठीक है। एंड हमने उसका एयर लॉन्च वर्जन बनाया, जिससे कि क्या फायदा हुआ कि लैंड की जो रेंज थी वो लिमिटेड थी, एयर में आपने डाल दी तो जहाज जहां तक जा रहा है वहां से आगे और ब्रह्मोस की आगे और रेंज है। सो यू गॉट मोर और फ्लेक्सिबिलिटी इन जहाज भी तो टारगेटिंग। 900 किलोमीटर में, और जहाज भी सो 900 किलोमीटर की स्पीड सो पे जा रहा है। करेक्ट, सो हर चीज का सो फायदा हो रहा है, आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है ऑफ टारगेटिंग। द रिलेटिव स्पीड इज ऑल्सो मच। जो लॉन्चिंग स्पीड है क्रूज मिसाइल का, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम ए Yeah, that is प्लेटफॉर्म विच इज that is मूविंग। added. That is added. See, everything is assisting. So you get more flexibility in terms of range, options of. अगर आपने से ग्राउंड बेस्ड मिसाइल रखी, आपने उस मिसाइल को से अंबाला में प्लेस किया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर आपकी रेंज से 300 किलोमीटर है, तो अगर आपको उस 300 के बाहर कहीं फायर करना है, तो आपको पूरी मिसाइल सिस्टम लेके ट्रक से ले जानी पड़ेगी वहां पे, टाइम लगेगा उस चीज को। जबकि अगर यही हाँ मिसाइल आप जहाज पे लगा दें मॉडिफाई करके, हाँ तो आप कहीं भी लेके जाओ जहाज, वहां से फायर कर दो। कल को अगर आपको अंडमान में फायर हाँ। करना है, आपको मिसाइल लेके थोड़ी ना जानी है, आप जहाज को भेजो अंडमान में, वो फायर करके वापस आ जाएगा, मोबाइल प्लेटफॉर्म सो हो गया ये, ना। सो ब्रह्मोस इज एन एक्टिव मिसाइल, एक्टिव क्रूज मिसाइल। नो 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 नो, जब मैंने आपको सेमी एक्टिव एक्टिव और ये बताई, सारी एयर टू एयर एंगेजमेंट्स की थी। ब्राह्मोस इज एयर टू ओके ग्राउंड। सो एयर टू ग्राउंड के ओके। लिए टोटली अलग चीज है, आपको वहां के कोऑर्डिनेट चाहिए जहां आपके आपको मारना है। तो उसमें फिर अगेन कई टेक्नोलॉजीज हैं। यू कैन हैव बाय जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट, यू कैन हैव बाय डिजिटल सीन मैचिंग। दैट मीन्स आपके पास उस टारगेट का फोटो है, आप वो मिसाइल में कैमरा लगा है, वो उस फोटो से कंपेयर करता है, जब फेस मैच करता है, फेस मतलब उसका शक्ल, हाउ इट लुक्स मैच करता है, तो उसकी तरफ जाता है। यू हैव आई टेरेन आईएसओ टाइप। कंपैरिजन। हाँ, यू हैव टेरेन कंपैरिजन, दैट मींस यू हैव पूरी टेरेन का मैप फेड फ्रॉम एयर टू देयर। सो यू कंपेयर, जैसे टोमाहॉक मिसाइल है, टेरेन कंपैरिजन करती है। सो अलग अलग मिसाइलों में अलग अलग ओके टेक्नोलॉजीज हैं। नीडलेस टू से, जैसे हमारी ब्रह्मोस है उसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है टू रिमूव एरर। एक गलती करेगा तो ओके दूसरा उस गलती को करेक्ट कर देगा, ठीक है। सो इट्स अ वेरी ओके हाई ओके।
एंड ब्रह्मोस में अलग अलग मिसाइल के अटैक मोड्स भी हैं. यू कैन हैव अ टॉप अटैक, तो मिसाइल लास्ट में ऐसे पिचअप करती है और ऊपर से आके मारती है, अगर आप चाहो ऐसा वो करे. तो वो मोड आपको सिलेक्ट करना है. तो ये सब ऑप्शंस हैं. इट्स लाइक योर मोबाइल फोन में फोटो, पहले फोटो होते थे कि आप पॉइंट करो और खींचो, कोई ऑप्शन नहीं. फिर आया कि आप फोकस एडजस्ट कर सकते हो. अब आपके पास क्या है, ऑटोमेटिकली सब कुछ करता है. फोकस, ट्यूनिंग, फोटो खींचने के बाद उसको रिफाइन भी कर देता है आपका फोन, हाँ, है ना. तो ये सब ऑटो. वैसे ही ब्रह्मोस में अब हाइब्रिड वर्जन है. हर चीज जो मैंने आपको बताई सबका मिक्सचर है, टू गिव यू अ वेरी लो सीईपी, व्हाट वी कॉल सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी. मीन्स अगर मैं एक वेपन मारूं, तो अगर मैं बोलूं सीईपी 10 मीटर्स है, तो मतलब एटलीस्ट 50% ऑफ माई मिसाइल विल फॉल विद इन 10 मीटर्स. समझ रहे हैं? तो जितनी ओके, लो सीईपी या, होगी उतना मोर एक्यूरेट है. अगर मैं ब्रह्मोस किसी बोलूं 5 मीटर, मतलब अगर मैं 10 मिसाइल मारूं, 10 में से 5 5 मीटर के अंदर गिरेंगी. सो दिस गिव्स यू बेटर ओके, अश्योरेंस. आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है इससे कि हाँ ये लगेगी मिसाइल. okay. Was BrahMos the game changer of Sindoor? Yeah, BrahMos, why Kind is of. it a game changer is more important. It was a game changer on Yeah. many fronts. First, it is an indigenous thing in terms of ये एक joint venture है between two companies, Russian and Indian. So we had a supply of it. We don't have to buy it from outside. Second, BrahMos is a supersonic cruise missile, which makes it very few countries in the world have supersonic cruise missile. When you say supersonic, that means goes more faster than speed of sound. सो व्हेन इट डज दैट, बाकी जो क्रूज मिसाइल हैं वो काफी लो स्पीड. टू गिव यू एन एग्जांपल, जो नॉर्मल क्रूज मिसाइल है, ओके, लाइक उनके पास वो है हथ 7, विच इज अ क्रूज मिसाइल बाबर. सो उनके जो क्रूज मिसाइल हथ 7, दैट फ्लाइज ओनली एट अबाउट 700 to 800 kilometers per hour, while Okay. this missile will fly in excess of 2000 kilometers per hour. तो वेरी डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट इट. उसको मार गिराना बहुत मुश्किल हो जाता है. प्लस इसमें ये जब टेक्नोलॉजी Reaction ऊपर time. चढ़ के नीचे उतरना, ये डिफीट करती है उसको जो उसको ट्रैक कर रहे हैं. अगर सीधे सीधे मिसाइल उड़े तो उसको ट्रैक करना आसान है, जैसे कोई जहाज अगर सीधा सीधा Absolutely. जाए. तो ये सब हाई टेक्नोलॉजीज हैं. एंड इसकी एक्यूरेसी सबसे बड़ी चीज, वेरी हाई एक्यूरेसी, extremely high. It can be targeted, it can be, to give you an example, the accuracy का things are classified, they are not in the open domain. But सिंपल चीज आपको बताता हूँ, यू कैन इवन सेंड अ ब्राह्मोस थ्रू अ पर्टिकुलर विंडो ऑफ अ बिग बिल्डिंग. आप चूज कर सकते हो कि 15th फ्लोर की ईस्टवर्ड फेसिंग विंडो से जाएगा अंदर. इतनी एक्यूरेसी है उसकी. Oh, सो आप सर्जिकल स्ट्राइक जो यूज करते रहते हो वर्ड, ये yeah. सर्जिकली आप उस पार्ट को निकाल सकते हो जो आपको चाहिए. तो हमने जो मुरीदके में या फिर भावलपुर में जो हमने पर्टिकुलर जगहों पे मारा है, वी हैव हिट द स्पेसिफिक रूम्स वेयर वी न्यू दे वर लाइकली टू बी स्लीपिंग और रेस्टिंग, वो भी रात को, Okay. Okay. ताकि टू मिनिमाइज सिविलियन कैजुअलिटीज. Understood. Understood. No, another thing which I wanted to ask. So, like Air Force का squadron strength 42 है. Now it is much down, more than 10 squadron down. And अभी आम का प्रोग्राम आ रहा है. Lot of debates whether Su-57 लेना चाहिए. I don't know. ले भी रहे कि नहीं. Su-57 और F-35. So ये squadron जो strength है, can it be supplemented by say surface to surface missile BrahMos, और say improving our air defense, और एक और चीज जैसे आजकल like ऑप सिंदूर में one noteworthy thing was our drones basically. Can drones also carry BrahMos where these squadron strength can be complemented or supplemented? So I will answer it in a nutshell. It is this, that एवरीथिंग कैन बी डन. आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपकी जो एयर पावर है ऑफ द नेक्स्ट सेंचुरी, दैट मीन नेक्स्ट 10 years, 50 years, 20 years, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. ठीक है. अब आपने Okay. एक पहला सवाल पूछा कि 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, 45 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ. अभी yes, our fighter strength has fallen drastically. It is not because of today, it is because of what actions were taken 20 years back. बिकॉज एक फाइटर स्क्वाड को, एक फाइटर को बनाने में, इंडक्ट करने में डेकेड्स निकल जाते हैं, मतलब 10 10 साल निकल जाते हैं. तो आज जो आप हाँ. डिसीजन लेंगे उसका इम्पैक्ट आपको 2035 में मिलेगा, आपका एमका और वेरियस अदर टेक्नोलॉजी. ये होगी पहली बात. सो दूसरी चीज, मोर एंड मोर रोल्स, mark my words, more and more roles are going to be taken by unmanned aircraft, the drones, unmanned combat aerial vehicles, anything that is autonomous. More roles will be taken. But in the near future, total replacement is still not on the cards.
So you will हाँ require manned fighters. So again, the sixth generation fighter which is coming up in the world, फिफ्थ जनरेशन की तो बात चल रही है एमका वगैरह, हम सिक्स की बात कर रहे हैं जो वर्ल्ड में बना रहे हैं, चाइनीज बना रहे हैं, अमेरिकन बना रहे हैं, इवन यूरोपियंस बना रहे हैं, टेम्पेस्ट नाम का। ये सारे हाँ ऑप्शनली मैंड है, मतलब इसमें मैनिंग जीरो नहीं की हुई है, ऑप्शनली कभी मैंड होगा कभी अनमैंड होगा, मतलब सीट होगी उसमें। हाँ, सो तो इवन सिक्स जनरेशन का इवन बोल द रहे थे सर। सिक्स, इट इज ऑप्शनली मैंड, दैट मीन्स इसमें कॉकपिट है, सीट्स। सी द मोमेंट यू पुट कॉकपिट, 100 थिंग्स हैव टू बी पुट। ऑक्सीजन डालना पड़ता है, ह्यूमन को मेंटेन करने के लिए जगह चाहिए होती है, सबसे पहले तो जगह बनानी हम्म, पड़ती है, एक ह्यूमन फिट हो, हाँ उसको असिस्ट करने के लिए, तो पूरा कॉकपिट का लेआउट चेंज हो जाता है। सो एक बहुत बड़ी पेनल्टी हो हाँ जाती है अगर आपको इंसान डालना है उसके अंदर। अगर इंसान हटा दें हाँ उसमें से, तो द एयरक्राफ्ट हाँ कैन बी मेड वेरी नाइस एरोडायनेमिकली एंड बहुत ही अलग बना सकते हो। आपने जैसे ही बोल दिया इंसान डालना है, हो गया। इट्स लाइक मैं आपको बोलूं कि भाई आपको ट्रिप पे जाना है, रोड ट्रिप पे टू गोवा, आप कैसे भी चले जाओगे, आप बस से चले जाओगे, लटक के चले जाओगे, 100 ऑप्शंस आर ओपन टू यू। मोमेंट आई टेल यू नो नो नो, यू हैव टू गो विथ योर बूढ़ी दादी ऑफ 80 years, बस हम्म, सारे आपके ऑप्शन जीरो। अब आपको कुछ ही तरीके अवेलेबल हैं जो अवेलेबल, सेम फाइटर के डिजाइन में अगर आप इंसान को हटा दें उसमें से, तो 100 थिंग्स कैन बी डन। उतनी जगह बाकी चीजों के हाँ लिए अवेलेबल हो जाती है, द शेप द ज्योमेट्री ऑफ द एयरक्राफ्ट इटसेल्फ कैन चेंज, बट फिर भी उन्होंने इंसान को रखा है उसमें। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज कि जो लोग बात करते हैं ना कि भाई अब तो सब अनमैन्ड होगा, यस होगा इंक्रीजिंगली, बट इंसान अभी टोटली हटाए नहीं है। मे बी द सेवंथ जनरेशन वुड बी फॉट बाय रोबोट्स एंटायरली। सो सो नहीं नहीं टू मैं अगेन, हाँ अगेन आंसर क्वेश्चन, हाँ एयर डिफेंस, drones, they're all going to improve, but there is a lack of manned fighters which cannot be filled up by all of this alone. You will ओके require to take actions to replace them, and that is why government is aware of it. I hope and sincerely pray that it should not happen कि danger चला गया तो आप अब इस चीज को बैक बर्नर पे डाल दो, हाँ है ना। बिकॉज लाइक आम का जो लाइक 2035 डेडलाइन, सो अभी जो अभी चाहिए तो अभी चाहिए, इसको तो भाई आप इसीलिए रिप्लेस नहीं इसीलिए कर सकते। इसीलिए शॉर्ट टाइम में हम खरीदने की सोच रहे हैं, बट यू नो हाँ हाउ आवर ब्यूरोक्रेसी वर्क्स, हाउ आवर कंट्री का एक्विजिशन सिस्टम वर्क्स, यू नो हाउ इट वर्क्स वेरी स्लो, decision लेने में। so all this we are all praying and hoping that we don't only rely on our superior planning and our bravery, but we have actually best equipment available in time in required अच्छा numbers to do the best. So already there are suggestions, चलो अगर आप न्यूज़पेपर का आज का आर्टिकल पढ़ोगे उसमें लिखा है कि इंडिया नीड्स टू हाइक इट्स डिफेंस स्पेंडिंग। हम्म, So we have well-intentioned people in our country who feel that war fighting and all is unnecessary and we should go towards peace. But practicality says that we have to be ready to defend ourselves and ready to defend absolutely ourselves against joint China and Pakistan. हमने ऑप सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान के साथ लड़ा, चाइनीज असिस्टेंस था। इमेजिन अ सिनेरियो अगर वी हैव टू फाइट बोथ। सो आई लीव योर एंड प्लस दर्शक, प्लस प्लस या सो बांग्लादेश भी ऑल आ रहा है अभी। correct, so all of that we have to be ready. We are चलो one of the third largest economy in the world. We need to guard ourselves well. और जैसे हिंदी में बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस. So I'll leave today's conversation by saying that there is a requirement, a definite requirement for much more spending and wise spending, not only spending to achieve our चलो long-term aims. ठीक है? चलो विद दैट नोट, थैंक्स अमित, थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग Thanks. It was एंड wonderful कैच for यू। you to host me, and I hope I was able to answer your questions. Absolutely, it was a lovely conversation, and I'm sure our viewers will learn a lot from your takes. And thank you, and Jai Hind. Well, thank you so much.